So now today we will do the definition of unit step function. Unit step function. The unit step function I. Function का नाम ही क्या रखा है? I. It is defined as Ix. Actually देखो नाम है यूनिट है इसलिए हमने नाम इसका I रखा. You can also name it like f of x. ठीक है? This is equal to. It is giving the value 0 if x is less than or equal to 0 and it is a value 1 when x is greater than 0. सो अब इसको अगर हम ग्राफ में देखें भी फंक्शन कैसा बनेगा नेगेटिव. ये देखो ये सारा नेगेटिव है. ये वाली लाइन दिस होल लाइन इज नेगेटिव राइट. ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड है सारी. सो जब आप इसको प्लॉट करेंगे नाम क्या है यूनिट स्टेप फंक्शन. सो व्हेन यू विल टेक ये 0 और ये सारा यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू बेटा 0 राइट. और जब हम 0 से आगे बढ़ते हैं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 है. सो इतना सा ये देखो मैंने यहाँ से इतना सा गैप छोड़ दिया क्योंकि 0 पे वैल्यू 0 है. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन. So definitely beta this graph is discontinuous. This function is the graph in this function is discontinuous because इसकी जो left neighborhood है वहाँ value 0 है और right neighborhood में value कितनी है 1 है. आप ऐसे लिखते हैं आप you can write like that I of x plus is equal to 1 and I of x minus is equal to 0. So there is one theorem number 4. What it say? If there is any point S which is lying between the interval a to b and f is bounded on the closed interval a to b. ठीक है जी. और f is continuous at the point S and alpha x is given to be the step function unit step function ix minus s. Then what to do? We want to do integration a to b f of t alpha is equal to the value of the function f at the point s. So actually you have to find the integral. ठीक है जी. जहां इंटेग्रल फाइंड आउट करना इट विल स्टार्ट फ्रॉम द पार्टीशन. कंसीडर सबसे पहले पार्टीशन ले लेंगे. पार्टीशन आपने लिया a is equal to x नॉट से लेके you know it is equal to xn तक नहीं लिया है. We have taken the 3 points 1 2 and 3. 3 points ले हमने n तक नहीं जनरलाइज नहीं किया. We have taken the 3 points and the last point name is b of the closed interval a to b. Where x1 we have taken s और आपकी condition क्या है s is lying between a to b. And now similarly small mi and capital Mi, you know these are the bounds of f in the interval xi minus 1 to xi. ठीक है जी. Or definitely here I is not running from 1 to n, here I is running from 1 to 3. Now we will find out the UPF alpha. UPF alpha. What's the definition? This is summation I running from 1 to n capital Mi into delta alpha is equal to हम तीनों खोलेंगे delta alpha 1 plus m2 into delta alpha 2 so up to m3 into delta alpha 3. So m1 what is alpha? This is alpha x1 minus alpha x0 plus m2. This is alpha x2 minus alpha x1. ठीक है जी. Similarly बेटा तीसरा भी आप लिख लेंगे. Now m1. Now बेटा what actually alpha x? आपको alpha x actually पता क्या दिया है? आपको दिया है ये कौन सा फंक्शन दिया है? स्टेप फंक्शन दिया है. ठीक है. अब स्टेप फंक्शन की वैल्यू 0 और 1 है तो हमने वहां ऊपर क्या लिखा था? अगर x माइनस एस क्या होगा? लेस देन 0. यहाँ होगा x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0. इसका मतलब x की वैल्यू जब s से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है. अगर x की वैल्यू s से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है. और पार्टीशन में आपने
ये देखो हम इसको अलाइन कर लेते हैं. दिस इज आर ए, दिस इज आर एक्स नॉट, और ये जो x1 है ये किसके बराबर है? s के. हियर इज x2, here is x3 and here is b. जब आपका x किससे छोटा है बेटा? s से. ये देखो यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी. इसके ऑनवर्ड जो वैल्यू आएगी आप 1 करेंगे. ठीक है. अब अल्फा x1 x नॉट दोनों ही क्या है? उससे छोटे हैं, तो वैल्यू क्या आएगी? 0 0 m2. ठीक है. अल्फा x2 पे वैल्यू कितनी आएगी? अब 1 आएगी. और x1 पे वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी. ठीक है जी. प्लस और लास्ट में दो वैल्यूज है x3 माइनस, यहाँ पे कौन है? अल्फा ऑफ x3 माइनस x2. x2 पे भी वैल्यू 1, x3 पे भी वैल्यू 1. ये वैल्यू है बेटा, ये जो मैंने नीचे लिखा ये is है. ये i अल्फा x की वैल्यू है. दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा x. So this comes out to be 1 minus 1. So ultimately सारा सॉल्व करके आ गया आपका m2. Similarly you will get LPF alpha. वो क्या आ जाएगा? स्मॉल m2. Now, the function is continuous at the point s. Function is continuous. This is continuous at x is equal to s. Therefore, continuity का मतलब होता है बेटा जब फंक्शन continuous होता है तो बाउंड्स जो है फंक्शन की हमें उस इंटरवल के बीच में मिल जाती हैं. इसका मतलब m2 एक फंक्शनल वैल्यू है, तो ये किसी ना किसी पॉइंट ये f of s पे आएगा. ठीक है. एंड स्मॉल m2 दैट विल बी अप्रोचेस टू f of s where when लिखा है when x2 जो है वो s को अप्रोच कर जाएगा. जब x2 जो है वो s को अप्रोच करेगा तो m2 जो है वो f of s को अप्रोच करेगा, स्मॉल m2 भी स्मॉल f of s को अप्रोच करेगा. देखिए पहले m2 की डेफिनेशन लिखिए. m2 इज द सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल. कौन सा इंटरवल आएगा इसमें? xi माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 यानी x1 से x2 इंटरवल. ठीक है जी. एंड स्मॉल m2 इट इज द infimum of f of x in the interval x belongs to, here you have वही सेम x1 ये आपका infimum of the function. ठीक है. अब now the question is अब how to find the value of the function? You don't have given the value of f of x. अब वो कह रही है जब x2 जो है s को अप्रोच कर गया. बेटा देखो ये s को अप्रोच कर गया, x1 तो पहले ही क्या है? s है. तो इंटरवल में पॉइंट कौन सा बचा? सिर्फ s बचा. यानी x किसको बिलोंग कर गया? s को. तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट रह गया, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? f of s. सिमिलरली यहाँ भी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? f of s with respect to the condition that when x2 is converging to s. So now अब we know that then LPF अल्फा का जितने LPF आपने निकाल लिए, LPF भी निकाल लिया, UPF भी निकाल लिया, वो किसको अप्रोच कर रहे हैं? f of s को. अब आपने क्या लेना है? उसका सुप्रीमम. ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे. So here you will have supremum of LPF alpha, right? उसके बाद का स्टेप है दिस इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ UPF अल्फा. ठीक है जी. और दोनों की वैल्यू क्या है बेटा? आपने क्या फाइंड आउट की है? The value is equal to f of s. So therefore, this is the lower integral f of d alpha, which is equal to the upper integral f of d alpha. And what's the value? The common value is equal to f of x. It implies f belongs to R alpha on the closed interval a to b, and the value of the integral is equal to f of s. That's all. So this is the proof of this theorem. I hope this question is